Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are better and doing your studies. And I just hope you all have done your written works. अभी आपने अच्छे से कर लिया होगा and you are preparing yourself for your board examination for the next year. So very all the best, children. And I hope you all are watching the videos also of mine on a regular basis. आप देख रहे हो, you are understanding the thing, you are learning it, and everything you are giving your best, and every time you are focused. So children, keep yourself the positive spirit, the positive thinking, and with the positive thinking, with the positive spirit, move toward your studies. Children, yesterday we studied about the intergroup conflict. We studied about what is intergroup conflict. हमने ये पढ़ा था कि intergroup conflict क्या है. And today again we are study about that particular topic and move it further. So the topic of our today is again intergroup conflict. But we studied about the concept in the previous video. We read about what is intergroup conflict. We read about that what is the meaning of intergroup conflict. We read about what is the difference between intra-group conflict and intergroup conflict. We also studied what is the reason, क्यों होता है intergroup conflict, क्यों होते हैं, what are the reasons. So we came across so many reasons. We also studied about what are the consequences of intergroup conflict. अगर इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका आउटपुट क्या होता है, what is the consequence, and that we have studied according to the Deusch. ड्यूश के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का कंसिक्वेंस क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है. जहां भी इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होती है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट भी आता है. तो क्या इफेक्ट होता है ये भी हमने पढ़ा था. देन वी ऑल्सो रेड अबाउट सम लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. लेवल्स भी हमने पढ़े थे, पर्सनल लेवल, स्ट्रक्चरल लेवल, ग्रुप लेवल, ये सारे लेवल्स भी हमने स्टडी किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन द टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज. हमने ये तो जाना कि इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता कैसे है. नाउ our topic is to how to remove it, strategies. Today in this video we basically discuss about the strategies. ठीक है, हम लोग strategies के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या strategies आप लोग ये conflict को रिसॉल्व करने के लिए, रिजोल्यूट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए. We know कि conflict होते हैं, बट conflict को रिड्यूस भी किया जा सकता है. So let us study about the different resolution strategy. Conflict can be reduced if we know about their causes. The processes that increase conflict can be turned around to reduce it also. See, it is applicable on every situation, children. When we know about the cause of the problem, so obviously the solution is there. हमें जब कारण पता चल जाता है कि किस वजह से वो प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है, तो obviously we always try to reduce that cause. Same with the intergroup conflict also. If we understand that what are the things which are leading to the intergroup conflict, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि intergroup conflict हो रही है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से conflict हो रहा है, we get to know so many reasons. Poor communication is also one of the reason. So just take an example, अगर poor communication की वजह से, lack of communication की वजह से intergroup conflict हो रहा है, तो obviously उसका resolution strategy या उसका solution यही है कि you will increase your communication, you will try to improve your communication. So आप अगर ऐसा करेंगे, आप communication increase करेंगे, अपने communications को improve करेंगे,
तो ऑब्वियसली इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी रिड्यूस हो रहा। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे गोल हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी हैं, जिनमें सबसे पहला है ऑल्टरिंग परसेप्शन। द फर्स्ट वन इज ऑल्टरिंग परसेप्शन। परसेप्शन को चेंज करिए, जो भी परसेप्शन हमने बनाया है उसको चेंज करिए, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है। Conflict can also be reduced by altering perception and reaction through persuasion, educational and media appeal, portrayal of group differently in society, promoting empathy for other should be taught to everyone right from the beginning. सो परसेप्शन को चेंज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। परसेप्शन चेंज कैसे हो सकता है, जैसे परसुएशन करने से, मीन्स इनिशिएटिव करने से। आप आगे से इनिशिएटिव लो, ये मत रखो, ट्राई टू डोंट हैव एन नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड अदर ग्रुप। ओके, नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो वी नेवर इंटरैक्ट, वी नेवर इंक्रीज अवर कम्युनिकेशन। हम उससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश नहीं करेंगे नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से। सेकेंडली, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर if I think that why should I initiate first, the other one should also talk to me, so that creates a problem. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं ठीक है आप ही बोलो या मैं क्यों बोलूं, अदला बोले मुझसे, तो ये जो इनिशिएटिव वाला क्राइटेरिया है परसुएशन, ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि फिर सेकेंड पर्सन ही करे तभी आप करो। यू कैन ऑल्सो टेक एन इनिशिएटिव। इससे ये परसेप्शन चेंज करना है हमें। देन एम्पैथी को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटिंग द एम्पैथी, दिस कम अंडर द परसेप्शन पॉइंट। प्रमोटिंग एम्पैथी। Empathy, you all know children, what is the difference between empathy and sympathy? Empathy means understand, sympathy means understanding the person, but empathy means understanding the feelings also in the same manner as the other person is feeling. So that is an empathy. There is a phrase also for the empathy like putting yourself into someone's shoes. ठीक है, तो that is related to the empathy. Fine. Second resolution is the increasing intergroup contact. After the altering perception, the second is the increasing intergroup कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट्स इंक्रीज करिए। चिल्ड्रन जस्ट कीप इट इन माइंड व्हाट वी आर स्टडिंग। वी आर स्टडिंग अबाउट इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म किया जाए, हाउ वी कैन रिड्यूस द इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप। सो बाय चेंजिंग द परसेप्शन, बाय प्रमोटिंग द एम्पैथी, बाय इंक्रीजिंग द इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, we can do this one. Conflict can also be reduced by increasing contact between the group. This can be done by involving group in conflict on neutral ground through community projects and events. The idea is to bring them together so that they become more appreciative of each other's stand. However, for contact to be successful, they need to be maintained, which means that they should be supported over a period of time. It was trying to say children, कभी कभी होता है, आपने देखा होगा in your childhood also, या might you have observed कि टीचर्स जैसे क्लास में बच्चे अगर बहुत लड़ते हैं तो टीचर उनको एक ग्रुप में पुट ऑन कर देती है
ताकि और आप ये फाइंड आउट भी करते हो कि उससे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी रिड्यूस होता है, जो दोनों के कम्युनिकेशंस होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। जैसे कोई टास्क असाइन कर दीजिए, कोई काम अपॉइंट ऐसा कर दीजिए जिसमें उन दोनों को इन्वॉल्वमेंट है, तो जब दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं कोई एक काम करने के लिए, मान लीजिए सपोज देयर वाज अ टू ग्रुप एंड यू हैव असाइन अ टास्क एंड द सेम टास्क यू हैव असाइन और यू पुट टू ग्रुप्स इन अ वन ग्रुप, so obviously daily interaction, daily communication can somewhere reduce the intergroup conflict. So I hope you understand about the intergroup contact. Now the third resolution strategy is redrawing group boundaries. Redrawing group बाउंड्रीज, ग्रुप की बाउंड्रीज को फिर से रीड्रॉ करिए। इट इज रिटन ओवर हियर रीड्रॉ, रीड्रॉ यानी फिर से बनाइए। ठीक है, दो ग्रुप है, उन्होंने अपने बीच में ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, दे पुट अ लाइन, दे पुट अ बाउंड्री, तो उस बाउंड्री को रीड्रॉ करिए, रीड्रॉ करिए, फिर से ड्रॉ करिए। देखिए क्यों इतना इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। Another technique that has been suggested by some psychologists is redrawing the group boundary. This can be done by creating condition where group boundaries are redefined and group come to perceive themselves as belonging to a common group. फिर से सोचें, फिर से बैठें, think, introspect and then find out कि where is the problem. ठीक है, एंड फिर से ग्रुप के बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग द इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स, आई एम गोइंग टू रब इट एंड आई जस्ट होप आपने इसे नोट डाउन किया होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी? नेगोशिएशन। This is the fourth strategy, negotiations. This is the fourth strategy of intergroup conflict. Negotiate करना सीखिए। जरूरी नहीं है कि हर टाइम हम अपने ईगो को लेके बैठे रहें। और see, you have read one phrase that tree only bend who is full of fruits. Okay, who is having so many fruits. So be that tree, don't be that tree कि अकड़ के रहना, ये चीजें। नेगोशिएशन भी करने से कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस थ्रू नेगोशिएशन एंड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। Warring groups can resolve conflict by trying to find mutually acceptable solution. This requires understanding and trust. नेगोशिएशन मतलब ऐसा कुछ करना, इट इज समथिंग विच इज इन द फेवर ऑफ फर्स्ट पार्टी ऑल्सो एंड फेवर ऑफ द सेकेंड ग्रुप ऑल्सो, फेवर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑल्सो एंड फेवर इन द फेवर ऑफ द सेकेंड ग्रुप ऑल्सो, उसे हम नेगोशिएशन कहते हैं। इट नेगोशिएशन इज समथिंग विच टॉक अबाउट द इक्वालिटी, लाइक दोनों ग्रुप जो है वो इक्वल ग्राउंड पे है, कोई ऊपर या नीचे नहीं है, दे आर ऑन इक्वल ग्राउंड। Negotiation refers to the reciprocal communication so as to reach an agreement in situation in which there is a conflict. Sometimes it is difficult to dissipate conflict through negotiation. At times, mediation and arbitration by a third party is needed. Mediator help both parties to focus their discussion on the relevant issues and reach a voluntary agreement. In arbitration, the third party has the authority to give a decision after hearing both parties. Sometimes negotiation में intervention जरूरी हो जाता है एक थर्ड पार्टी का, एक थर्ड पर्सन का, थर्ड ग्रुप का, जो दोनों पार्टीज के बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं और फिर वो एक जजमेंट देते हैं दोनों को, और इट वाज इन द फेवर ऑफ बोथ द पार्टी.
So this can be one of the method for the intergroup conflict. Okay, so negotiation is also one of the method through which a conflict can be resolved. So नेगोशिएशन में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन होता है जो दोनों पार्टीज में के फेवर में बात करती है और दोनों में एक नेगोशिएशन करा के इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है. ओके, जिसे हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन. इट इज इंक्लूडेड इन द नेगोशिएशन पार्ट, arbitration. Now the fifth one, what is the next strategies through which intergroup conflict can be reduced? So fifth is the respect for other group norm, a very important point. Respect for other groups norms. Negotiation, respect for other groups norms. जब तक, see children, here the word respect matters a lot. When you don't see, I think again I will discuss with you one phrase, you have agree with it. Everything is based on give and take. आप जैसा देते हैं आपको वैसा मिलता है. आप अगर रेस्पेक्ट देंगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, आप अगर डिसरेस्पेक्ट देंगे तो यू गेट द डिसरेस्पेक्ट. एंड इट इज समथिंग बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल साइकोलॉजी. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस. एंड इन द लाइफ चिल्ड्रन इट इज वेरी मच ट्रू. वॉट यू गिव टू अदर, द सेम थिंग you will get. So now it totally depend on us what we want. ये तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो. You want a respect in your life or you want a disrespect. So I think nobody wants and nobody likes to have a something which is not in favor of them. जो अच्छा नहीं लग, something which is not pleasurable. The things which are unpleasurable, everybody wants to avoid it. Everybody wants to get a pleasurable thing, which give them a pleasure, which give them the relaxation. Okay, आगे बढ़ेंगे. So respect for the other group's norm is also one of the technique through which intergroup conflict can be resolved. In a pluralist society like India, it is necessary to respect and be sensitive to the strong norms of various social and ethnic groups. It has been noticed that a number of communal rights between different groups have taken place because of such insensitivity, because of disrespecting the other group's norm. ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स या कम्युनल राइट्स जो भी होते हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, ये सारे कुछ रीजंस यही हैं कि हम दूसरों के नॉर्म्स को डिसरेस्पेक्ट करते हैं. हमने पढ़ा है कि अपने ग्रुप के लिए बी फीलिंग होती है और दूसरे के ग्रुप के लिए दे फीलिंग होती है. यही सबसे बड़ी समस्या है. हम अपने ग्रुप के नॉर्म्स, अपने ग्रुप के बनाए हुए नियमों कानून को हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, पर दूसरे के ग्रुप के नॉर्म्स को हम लोग क्यों डिसरेस्पेक्ट करते हैं? दैट इज द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. एज यू आर रेस्पेक्टिंग योर नॉर्म्स, यू शुड रेस्पेक्ट द अदर्स नॉर्म. एज यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ द सेम वे यू विल ट्रीट अदर ऑल्सो. Then you will be able to resolve any of the conflict in your life. So this is about intergroup conflict. So respect for other group norm is another criteria. So we read, अभी तक हम लोग ने 5 points पढ़ लिए. Altering perception, increasing intergroup contact, redrawing group boundaries,
negotiation, respect for other group, no. Moving forward, the next strategies is structural solution. Structural solutions. It is also one of the reason for intergroup conflict. Structural solution. इससे भी आप इट इज वन ऑफ द टेक्निक टू रिड्यूस द इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. इससे भी इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है. तो स्ट्रक्चर सॉल्यूशन यानी आप एक स्ट्रक्चर वे में चलिए ना. वाई यू आर मूविंग हियर एंड देयर एंड वाई यू आर गोइंग इन समथिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड मैनर. सो डू एवरीथिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. इससे समझते हैं. स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन. इसमें क्या आता है? Conflict can also be reduced by redistributing the societal resources according to principle based on justice. देखिए, जो भी सोसाइटी से हमें रिसोर्सेस मिल रहे हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए ना. इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. सी मैक्सिमम टाइम कॉन्फ्लिक्ट के जो ज्यादातर रीजन होते हैं वो कम्युनिकेशन पुअर होना और इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है. और हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी रीजन होता है. तो ये सब मेन रीजन है. दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन. So redistribute the societal resources according to the principle based on justice. Research on justice has identified several principles of justice, जिसमें से 3 मेन हैं. जस्टिस के प्रिंसिपल पे स्ट्रक्चर सॉल्यूशन ये कहता है कि जस्टिस के प्रिंसिपल पे आप रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करिए. तो जिसमें क्या क्या आता है? पहले आता है फर्स्ट प्रिंसिपल इज इक्वालिटी. जस्टिस इक्वालिटी की बात करता है. Second is the need, and third is the equity. So in these all 3 criteria on which the resources should be redistributed. Equality means allocating equally to everyone, सबको equally देना. Need, allocating on the basis of need. नीड यानी जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप में 10 लोग हैं या फिर 2 ग्रुप की बात हो रही है, तो जिस ग्रुप को सबसे ज्यादा जरूरत है उसको दो, उसको ज्यादा दो. जिसको उतनी नहीं जरूरत उसको कम दो. इसके बेसिस पे भी ये भी जस्टिस का ही क्राइटेरिया. या फिर इक्वालिटी यानी दोनों को इक्वल दो. थर्ड ये हो सकता है एलोकेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर. इसके बेसिस पे भी आप कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द जस्टिस प्रिंसिपल. यानी जिस ग्रुप के मेंबर्स ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है आप उसको एलोकेशन यानी उसको ज्यादा दोगे, और जिस ग्रुप के मेंबर ने कम किया है उसको कम दोगे. तो इक्विटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं हम लोग एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज. नीड के बेसिस पे भी कर सकते हैं, और अदर वी कैन डू इट ऑन इक्वालिटी बेसिस. मीन्स इट कैन बी डन ऑन एन इक्वालिटी बेसिस ऑल्सो, इट कैन बी डन ऑन एन इक्विटी बेसिस ऑल्सो, और इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नीड. ऑल कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल. ये सभी जस्टिस प्रिंसिपल में ही आएंगे. आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं, आपने एक जस्टिस किया, ठीक है, which come under the structural solution. So structural solution करने से भी intergroup conflict resolve होता है या reduce होता है. आप ये भी कर सकते हैं. So हमने अभी तक में 6 points पढ़ लिए. Now the last and the most important point, किससे intergroup conflict और reduce हो सकता है. So the last one is introduction of
इंट्रोडक्शन ऑफ, आई होप आपको स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन समझ में आया होगा अच्छे से। इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑर्डिनेट गोल। इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑर्डिनेट गोल। सुपर ऑर्डिनेट गोल के इंट्रोडक्शन से भी इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है। जानते हैं ये कैसे? तो द लास्ट एंड द फाइनल टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग द इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑर्डिनेट गोल। चिल्ड्रन, गोल्स भी दो तरीके से होते हैं, सब ऑर्डिनेट गोल एंड सुपर ऑर्डिनेट गोल। सब ऑर्डिनेट गोल का मतलब होता है, लेट मी राइट इट दिस ओवर हियर, सब ऑर्डिनेट एंड सुपर ऑर्डिनेट। Now what is the difference between subordinate and super ऑर्डिनेट? दोनों में डिफरेंस क्या है, सबऑर्डिनेट और सुपर ऑर्डिनेट में? अगर गोल्स हम लोग लाइफ में या ग्रुप में हैं तो कुछ ऐसे गोल हम लोग बनाते हैं जो पूरे ग्रुप के फेवर में होता है, तो दैट इज अ सुपर ऑर्डिनेट गोल। वो गोल क्या है जो सभी ग्रुप के मेंबर्स के बारे में सोच रहा है, तो वो सुपर ऑर्डिनेट गोल है। बट अगर वो गोल सिर्फ आपके पर्सनल गोल्स को फुलफिल कर रहा है या सिर्फ आपके पर्सनल ही नीड जो फुलफिल हो रही है, तो दैट विल नॉट अ सुपर ऑर्डिनेट, दैट विल बिकम सब ऑर्डिनेट। तो ग्रुप में सुपर ऑर्डिनेट गोल को के इंट्रोडक्शन से भी कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है। यानी गोल बनाइए तो ऐसा जो सबके हित में हो, इट विल बी बेनिफिट टू एवरीवन। एंड सुपर ऑर्डिनेट गोल जो तभी बनते हैं जब ग्रुप में कोऑपरेशन होता है। सो कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट द सुपर ऑर्डिनेट गोल। सब गोल सुपर ऑर्डिनेट बनाने के लिए, ऐसे गोल जो सबके हित में हो, ऐसा बनाने के लिए ग्रुप के मेंबर्स का एक दूसरे से कोऑपरेशन जरूर होना बहुत जरूरी है, तभी सबके हित के लिए कोई काम हो सकता है। So introducing the superordinate goal, intergroup conflict can be reduced. A superordinate goal is mutually beneficial to both the parties. Hence, both group work cooperatively. Superordinate goal जो होते हैं वो दोनों ही पार्टी के लिए बेनिफिट होते हैं। मीन्स ऐसे गोल जो दोनों ग्रुप को ही बेनिफिट दे रहे हैं, इस ग्रुप को भी और इस ग्रुप को भी। तो ऑब्वियसली जब दोनों ग्रुप को बेनिफिट दे रहे हैं तो कोऑपरेट करके काम करेंगे वे लोग, इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होगा, कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा, रेस्पेक्ट करेंगे ग्रुप के नॉर्म्स को। सो यू कैन राइट डाउन चिल्ड्रन कि सुपर ऑर्डिनेट गोल क्या होता है। इट इज अ गोल टू विच पर्सनल गोल्स वर सब ऑर्डिनेटेड। So superordinate goal क्या है? Superordinate goals are the goal in which the personal goal are subordinated. Superordinate goal जब हम बनाते हैं तो हम अपने personal goals को नीचे रखते हैं और ऐसे गोल बनाते हैं जो सबके लिए बेनिफिट हो। And this always increase a cooperation among the group. So today in this video children, we studied about a different kind of resolution strategies. किस तरीके से हम लोग, what are the different techniques, what are the different points which help you to reduce the intergroup conflict, to know about it. I just hope you understand the topic which I had discussed with you today. So here we have completed this chapter also children. So today आपका chapter 7 is completed, social influence and group processes. ये आपका complete हो गया। Okay, so I just hope आपको अच्छे से prepare हो गया। अगर somewhere you will find any doubt, you will call me and ask to me, make a contact with me. I will definitely solve your queries.
And I just say thank you so much children for carefully listening and observing this video. Thank you.